हेलो एवरीवन, अब क्लैट का जो एग्जाम है विच इज वेरी क्लोज, ऑफिशियली अब आपका एक रिवीजन टाइम स्टार्ट हो गया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें कौन से सब्जेक्ट्स को कितने आवर्स देने चाहिए। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इस वीडियो में वही मैं आपसे बात करूंगा कि कितना टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। बट यू नो दिस इज द थिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव, हर किसी का अलग डिपेंड करता है। फॉर समबडी हुज been preparing for 2 years उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। for somebody who started preparing एक साल पहले उसके लिए डिफरेंट, somebody preparing for the last 2 months would be different, somebody preparing who has just started their preparation अभी 1-2 दिन पहले, उनके लिए भी डिफरेंट है। पर वो एक चीज कर सकते हैं, that is pray, भगवान से pray। तो अब now when we talk about के how exactly what should be your schedule like, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली for somebody for days when you're giving a mock and for days when you're not giving a mock. So let's start with the days when you're giving a mock. I feel on a day when you're giving a mock, you should give a mock which is of approximately 2 hours. You should spend time doing the analysis of the mock, looking at your mistakes and all. That should not take you more than 2 hours. After that, just spend time doing GK and doing a bit of reading. Reading can even spend half an hour, but although not necessarily important because reading has happened when you're giving the mock. But GK के लिए minimum 3 hours डालो. You can put more also depending on how much time you want to, how many months की GK you want to cover, कितने time की GK you want to cover. So it totally depends on that. Now going to the days when you don't have to give a mock. इन दिनों में I feel you should give close to half an hour, minimum half an hour to all 3 reading sections. That is English, logical, legal. And इस half an hour को भी आप split कर सकते हो where you're giving minimum time की मैं बात कर रहा हूँ. You can give 15 minutes to concepts and 10 to 15 minutes try to read 2-3 passages. Because understand one thing, when starting में you're building a skill, you're doing certain portion of your syllabus. If it has taken you 3 hours to complete a particular chapter ढंग से, next time when you do it, it should not take you more than an hour or more than half an hour. It's a very subjective thing. आपको अपने हिसाब से वो satisfaction आ जाएगी अंदर से, ठीक है। And secondly, I feel कि for somebody who has मतलब अब अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपको प्रॉब्ली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है फॉर यू टू बिल्ड योर स्किल्स। बट अभी आइडियली ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे आप अपनी स्किल को, रीडिंग स्किल को बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो। यू कैन मेंटेन इट अच्छे से, बट अब ज़्यादा इम्प्रूव करने का टाइम नहीं है बिकॉज नाउ इज अ टाइम टू एग्जीक्यूट दो स्किल्स। वो एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, इसलिए वो मॉक्स देने की मैंने बात करी। नाउ when we come on to the next aspect, on the days when you are not giving a mock, you should think of spending half an hour more time, giving half an hour का time to mathematics, quantitative aptitude, and उसमें भी वही कर सकते हो, थोड़ा सा concepts पढ़ा, थोड़ा सा practice करी, minimum half an hour। and एक और चीज इसके अंदर, आप half an hour का reading time allot करो खुद को, leisure reading के लिए, basic reading, ताकि आप reading के flow में रहो। और जब ये सारा हो जाए विच इज क्लोज टू मिनिमम 3 hours, ज़्यादा भी डाल सकते हो, यू हैव टू स्पेंड मिनिमम 3 hours मोर ऑन जीके। अब ये जीके में मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ ज़्यादा बिकॉज अब लास्ट के टाइम पे जीके बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट्स में तो आपने इम्प्रूव कर लिए, अब जीके पे ही ज़्यादा वर्क करोगे ना। जीके तो इज समथिंग जो आप अभी रिलेटिवली अभी कर रहे हो, तो यू विल नॉट फॉरगेट इट अगर आप इसको रिसेंटली करते हो। एंड आपको बारी बारी रिविजन ही करनी है जीके की, तो देखना ही है, तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोनों चीजों में एक और चीज दैट यू नीड टू ऐड इज, यू नीड टू स्पेंड 1 घंटा अपना टाइम समवेयर जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से कुछ फन एक्टिविटी कर रहे हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको स्ट्रेस और ये जो क्लैट प्रिपरेशन के बारे में जो आप सोच रहे हो इसको भुला दो 1 घंटे के लिए। And that is to deal with the stress. Stress is not you worrying about something कि आप चिंता कर रहे हो, but it is also you constantly thinking about it. आई थिंक कुछ लोग इतना कर लेते हैं जिनको शायद सपने में भी फिर क्लैट प्रिपरेशन नहीं आते हैं। आप में से अगर कोई ऐसा है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है बिकॉज आप अगर पेपर में भी सोचे अगर आप सारा दिन सोच रहे हो, आपको नींद में भी क्लैट प्रिपरेशन आ रही है, तो आई फील कि आपको नींद क्वालिटी विल गेट अफेक्टेड एंड आप पेपर भी ढंग से नहीं दे पाओगे। दिस इज समथिंग, एंड डोंट हैव दैट फीलिंग कि हमें गिल्टी फील होता है कि अगर हम पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर रहे। दैट इज मतलब टोटल स्टुपिडिटी, दैट इज अटर रबिश अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं फील होना चाहिए। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस ग्रोथ तभी होती है जब आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे। जैसे
इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग, आप एक्सरसाइज करते हो, योर मसल्स ब्रेक डाउन, दे ग्रो व्हेन दे रेस्ट. अगर आप कॉन्स्टेंटली उनको एक्सरसाइज कराते रहो, दे विल नॉट ग्रो, दे विल नॉट बिकम स्ट्रॉन्गर, दे विल गेट टायर्ड. तो आपको अपने आप को ओवर यूज नहीं करना, अपने ब्रेन को बर्नआउट ना हो, आपको उससे भी बचा के रखना है. एंड कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ कितने मॉक देने चाहिए हफ्ते में, क्योंकि मैंने मॉक की बात करी तो मैं वो पॉइंट वहां बताना भूल गया कि मॉक वाले डेज की जो बात करी थी, आइडियली आपको हफ्ते में मैक्सिमम 2 मॉक देने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज कमिंग टू द सेम प्रिंसिपल कि बर्नआउट ना हो. आपको पेपर वाले दिन अच्छा परफॉर्म करना है, पेपर से पहले आप अच्छा करो खराब करो डजंट मैटर, पेपर वाला दिन मैटर करता है. तो उसके लिए यू नीड टू इंश्योर कि आप अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस वाले स्टेट में हो. एंड उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताई उनको फॉलो करो. दिन में 1 घंटे का टाइम निकालो जिसमें आप कोई फन एक्टिविटी कर रहे हो, आप हफ्ते में 2 ही मॉक दे रहे हो, अपने थॉट्स को एनालाइज करो. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. आप कितने मॉक्स देते हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई कैन गिव यू माय ओपिनियन अबाउट इट. बट ऑल इन ऑल इट्स टाइम अब जो आने वाला है कुछ दिनों का जिसमें आप क्लैट की प्रिपेयर करोगे, इट्स सुपर इम्पोर्टेंट. इट कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट. आपने जो पूरे 1 साल 2 साल की मेहनत करी है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. इट्स जस्ट सुपर इम्पोर्टेंट. एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच एंड आई विश यू द बेस्ट.